बात नहीं, एकदम क्लास हो रहा है, रिकॉर्ड हो गया सर। आगे स्टार्ट करेंगे। बीकॉम ऑनर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2016 में आया हुआ सम है। सम हम पहले लिखवा देते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देते हैं। ये प्रोराटा है, प्रोराटा से ही रिलेटेड सम्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, लिखिए। बंगाल लिमिटेड was registered, जिसके पास बुक है वो मत लिखो, बट पूछोगे मत। बंगाल लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 5 lakhs. Bengal Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakhs. Divided into 30,000 equity shares of rupees 10 each. 30,000 equity shares of rupees 10 each. Equity shares of rupees 10 each. And 4,000, 10% preference shares of rupees 50 each. And 4,000, 10% preference shares of rupees 50 each. The company issued 15,000 shares, 15,000 shares at a premium of rupees 5 per share. At a premium of rupees 5 per share. Payable as on application rupees 5, on application rupees 5, in bracket including premium rupees 2, in bracket including premium rupees 2, on allotment rupees 6 per share, on allotment rupees 6 per share, ₹6 in bracket including premium rupees 3. On first call rupees 2 per share and balance on a final call. On first call rupees 2 per share and balance on a final call. And balance on a final call. ए बात नहीं करो, मास्क लगाओ, लगाओ मास्क। पता नहीं इतना सीरियस टाइम चल रहा है। नहीं मास्क लगाया सर भी लगाइए। हाँ लगा लेते। Okay. No allotment was made to the applicants of 4,000 shares. एप्लीकेशन कितना रिसिप्ट हुआ बताया था मैंने? नहीं, कॉमा दो, काटो उसको। नो अलॉटमेंट को काटो, हाँ देखो। एप्लीकेशंस वेयर रिसिप्ट फॉर 24,000 shares. Applications were received for 24,000 shares. No allotment was made 24,000 shares. No allotment were made to the applicants of 4,000 shares.
no allotment was made to the applicants of 4,000 shares. The rest of applications were issued. The rest of applications were issued on pro rata basis. The rest of applications were issued on pro rata basis. अब ध्यान देना, क्वेश्चन को समझो पहले, ये पढ़ते समय ही हम लोग समझ लेंगे, है ना। कंपनी को 24,000 मिला था, 4,000 रिफंड कर दिया, 15,000 इशू किया था, 5,000 एडजस्ट कर लिया, समझ में आ रहा ना। नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द, उसको 4,000 शेयर को कंपनी ने रिफंड कर दिया है और बाकी शेयर पे वो लोग एडजस्ट किए। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है क्वेश्चन में, मिस्टर ए who had applied 120 shares, 120 shares, failed to pay allotment and call money, failed to pay allotment and call money, and Mr. B who had applied for 80 shares, failed to pay 2 calls, and Mr. C to whom 45 shares were allotted, 45 shares were allotted, failed to pay the final call, shares of Mr. A, comma, Mr. B and Mr. C were forfeited after the final call was made. $160 of the forfeited shares, last line, 160 of the forfeited shares, including whole of Mr. A and B, ब्रैकेट में लिख लेना, including whole of Mr. A and B, ये वाला चीज ब्रैकेट में लिखना, 160 of the forfeited shares, ब्रैकेट में लिखना, including whole of A and B, whole of A and balance of B, including whole of A and balance of B, bracket close, were reissued to Mr. D at ₹12 per share. Were reissued to Mr. D at ₹12 per share. जर्नल है, शो जर्नल एंट्रीज। अभी तक हम लोग सिर्फ जर्नल पे बात किए हैं, क्योंकि इसका दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो साइड है, कैश बुक और बैलेंस शीट, वो हम लोग किसी स्पेसिफिक सम में करेंगे, ठीक है। बल्कि जर्नल से आपसे ज्यादा पूछे जाने का चांसेस है, और ये क्वेश्चंस अगर हम बार बार बता रहे हैं एज पर जो डेज जा रहा है आजकल, उसके हिसाब से अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो 10 मार्क्स का आएगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो 20 मार्क्स का आएगा। क्लियर? मतलब उसमें वेटेज ऑफ मार्क्स बढ़ जाएगा, और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर ये नहीं थमता है तो, कॉलेज नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला, तो हो सकता है आपका 5th सेमेस्टर भी ऑफलाइन ऑनलाइन हो। अब तक किसी ने डिसीजन नहीं दिया तो आगे कौन देगा?
कोरोना ही बताएगा क्या करना है। लेकिन हाँ, हम लोग को हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट नॉलेज के साथ पास हो, फ्री में नहीं। ऑफलाइन ऑनलाइन अलग का बात है, बिना नॉलेज के कोई मतलब नहीं आगे का पढ़ाई करके डिग्री लेकर। डिग्री तो पता है वो इज्जत नहीं होगा किसी को भी, वो पता चलेगा आप 2020 के स्टूडेंट हो, वो कोरोना स्टूडेंट तो वो कोरोना स्टूडेंट के नाम से आपको जाना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो रियली वैल्यूएबल होगा, ये बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, मार्क्स का वैल्यू होगा। अब मान लो कोई 100 पा ही चुका है, 100 पा ही चुका है, तो लोग अब उसको प्रीवियस उसका पास्ट देखेंगे, उसका हिस्ट्री देखेंगे कि आपने 6th सेमेस्टर में 100 पाया और फर्स्ट सेमेस्टर में 30 था और 4th सेमेस्टर में आपका कॉस्ट में इतना मार्क्स था और आपने टैक्स में इतना पा गए। मतलब क्या है, ऐसा क्या पढ़ लिया आप लोगों ने पूछा जाए एट द टाइम। अल्टीमेटली सबका एक ही रूल है कि हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करें कोई भी चीज के लिए। जरूरी तो है जिंदगी भर हम लोग यही करते रहेंगे, कुछ तो काम होगा। पढ़ाई करने का मेन पर्पज क्या होता है? तेजस्वी यादव क्या बोलता है? डिग्री हाथ में लेके घूमिए, पकड़ पकड़ के नौकरी मिलेगा। अब सोच लीजिए, डिग्री है तो आपको नौकरी मिल ही जाएगा, तो फ्यूचर में स्कोप बहुत आने वाला है। लेकिन अब अपना मार्केट ये हो गया है कि ईमानदारी से सबको अपना काम करना है। प्राइवेट फर्म में ही बहुत सारा स्कोप आने वाला है ना? सॉरी इमोशनल हो गया स्टूडेंट को लेकर, स्टूडेंट के नॉलेज को लेकर थोड़े से इमोशनल हो गए थे, बह गए थे। आगे सुनिए, अब हम लोग इस सम पे आते हैं, इस सम्स पर आते हैं। सम क्या बता रहा है? जितना कंपनी के पास रजिस्टर्ड कैपिटल है उससे कोई लेना देना नहीं है आपके जर्नल में, वो बैलेंस शीट बनाते हैं तब काम आता है। कंपनी ने कितना इशू किया आपने को वो देखना है। इक्विटी शेयर इशू किया 15,000, मिला कितना? 24,000। पहले अपना काम जितना मिला कंपनी उसको बटोर लेता है। पहला जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वर्ड में क्लियर आ रहा है? वर्ड देखना तो या छोटा है? ठीक आ रहा है? थोड़ा छोटा है, ओके। टीवी में चलाने को बड़ा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम बचपन में कभी नहीं सोचे थे हम भी टीवी में आएंगे। आधी घर में आपको चला देंगे। नंबर ऑफ क्या बोला? आधी घर में जाके आपको चला देंगे। क्या, चलो अपना ही घर है। 24,000 into 5 1,20,000। ये अपने को जितना मिला कंपनी सबसे पहले उसको बटोरता है, ये पहला काम है। चाहे वो कितना इशू किया उससे लेना देना नहीं है। वॉट एवर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अप्लाइड, वो सारा का सारा हमको मिलेगा और हम सब का सब रिसिप्ट करेंगे। अब हमको दूसरे एंट्री में जितना से क्रेडिट हुआ है, दूसरे एंट्री में उससे डेबिट करने का रसम है कि नहीं? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका डेबिट होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका डेबिट होगा। टू बैंक कितना वापस लौटा दिया? क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है 4,000 into 5। टू शेयर अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट भी हो रहा है और वो एडजस्टमेंट कितना शेयर से हो रहा है? 5,000 शेयर का, तो 5,000 into 5। टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर हमको चाहिए था 5,000, 2 रुपया प्रीमियम है तो 3 रुपया होगा। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या शॉर्ट में लिखे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को SPR, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 15,000 into 2। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ये जितना सा क्रेडिट हुआ था अगले एंट्री में उसका डेबिट करने का रसम है, डेबिट कर दिए। वापस लौटाना है 20,000, एडजस्ट करना है 25,000, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 45,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना होगा? 30,000। क्लियर? हो गया। जितना का डेबिट उतना का क्रेडिट, टोटल कैलकुलेट करके देखिए 1,20,000 हो गया। हो गया, ये खत्म, अपना एप्लीकेशन खत्म।
अब किसका बारी आएगा? अलॉटमेंट का। मिटा दे। अलॉटमेंट को अब क्या करेंगे हम लोग? ड्यू करेंगे। सबसे पहले ड्यू करेंगे और ड्यू करते समय ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर्स अब हमको हमेशा 15,000 से ही काम करना है। रेट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम इज व्हाट? 6 रुपीस। 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करना, 15 छक्के 90,000 यहाँ पर होगा। इसमें 3 रुपये आपका प्रीमियम है, 15,000 इंटू 3 45,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है और 15,000 इंटू 3 45,000 आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मिलने का टाइम आया, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो ये क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितना से डेबिट हुआ था उसको उतना से क्रेडिट करने का रसम तो है, लेकिन 25,000 रुपये आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिला हुआ है जिसको आप एडजस्ट करके बैठे हो। तो 90,000 में से 25,000 जहाँ पे आप सगुन का टीका लगाए नहीं थे लगा लीजिए एक बार वहां पे क्रेडिट में शेयर अलॉटमेंट में लगा लिए। 25,000 वहां पे टीका लगा दे तो याद रहता है आपको, उसको आपको माइनस करना है। 90,000 में से 25,000 को माइनस कर दिए तो हमको कितना मिलेगा? 65,000। तो आपके अरियर में कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर जो फेल्ड है 120 है। बस यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गौर करने का है। आप लोग सब यहाँ पे एकदम अटेंशन दीजिए। क्या बोले? जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट हुआ है, मतलब एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, और अगर कोई अलॉटमेंट फेल्ड कर जाता है तो इस पूरे केस को हम लोग प्रोराटा कहते हैं। और हम लोग साइड में इसको बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए शनि का दशा है, आप डायरेक्ट अगर कर दीजिएगा 120 इंटू रेट ऑफ 6 रुपया अलॉटमेंट का तो आप गलती कर बैठे हो, वो आपका प्रोराटा है। मतलब इस क्वेश्चन में शनि का दशा है। और जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर अप्लाइड बाय एनी शेयर होल्डर, देखिए लिखा हुआ है क्या शेयर अप्लाइड बाय, शेयर अप्लाइड लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में राहु हुई दशा, शनि पीक में राहु, दोनों ग्रह दशा है और सम को गलत करने का भरसक प्रयास किया गया है कि आप गलत कर देंगे। सम को आप गलत कर देंगे, ये भरसक प्रयास किया गया कि स्टूडेंट दोनों जगह पर ठोकर खाएं। पहला नंबर वो प्रोराटा नहीं समझेंगे। प्रोराटा तो अब नॉर्मल है, समझ रहे होंगे आप लोग प्रोराटा किस तरह से होता है। अब यहाँ पे शेयर अप्लाइड दिया तो अप्लाई वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्या दिया हुआ यहाँ पर, शेयर अप्लाइड। अब यहाँ पर हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दिख रहा है बोर्ड में, देखो तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ए। हमको निकालना है टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया गया है ए को जिसने फेल किया अलॉटमेंट मनी, ये हमको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालना होगा। जिसमें क्वेश्चन अप्लाई किया हुआ है वहां पे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आपको निकालना होगा। उसका फॉर्मूला होता है शेयर अलॉटेड बाय शेयर अप्लाइड